Welcome back to my YouTube channel. Today I discuss about the class 10th PYQ. तो चैप्टर नंबर 1 हमें हम लोगों ने डन कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे, जो कि है चैप्टर का नेम है आपका पॉलिनोमियल। चैप्टर का क्या नाम है आपका? पॉलिनोमियल्स है ना। तो पॉलिनोमियल्स को देखने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका बेसिक क्या क्या कंसेप्ट है, पहले उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है पोलिनोमियल का, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए पोलिनोमियल बोलता किसको बोलो, देखिए एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स डू नॉट अकर्स इन द डिनोमिनेटर्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स एंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म्स आर रियल नंबर इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। दैट मीन्स पोलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका वेरिएबल्स रहे, कांस्टेंट रहे और कांस्टेंट रहे, वेरिएबल रहे, पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और numerical coefficient of the various term of the real numbers is called the polynomial. That means इस टाइप से फॉर्म में रहता है। कैसा फॉर्म रहता है? कांस्टेंट ऑन वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर। दिस इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल फॉर्म। पोलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू इस टाइप से फॉर्म, कांस्टेंट वेरिएबल पावर में होल नंबर। दिस इज एग्जाम्पल्स देखो, दिखा देते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल 2x के पावर में q। देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, उसके पावर में होल नंबर। दिस इज द पोलिनोमियल। बट 2x के पावर में -1, दिस इज नॉट a polynomial because the exponent is not a whole number, exponent is a integer, so it is not a polynomial but it is a polynomial. Clear? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है आपका। देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट when n is the positive integers and the constant a0, a1, a2 dot are called the coefficients. Here fx is the polynomial in variable x. fx क्या होगा, polynomial in variable x होगा। नेक्स्ट टर्म क्या लिखा गया है, देखिए थर्ड में क्या लिखा गया है, वी कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशंस व्हाइल सॉल्विंग पोलिनोमियल। हम लोग पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं? एडिशन of a polynomial, subtraction of a polynomial, multiplication of a polynomial and division of a polynomial. नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या दिखा गया है, 4 पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट में क्या बोला गया है, polynomials can be classified on the basis of the numbers of terms as first monomials this is one terms, example 2x, 2x square, 2x cube. This is the monomials. Binomials, two terms, for the example 6a minus 5 and 6a minus 5 and x square plus 2 1. This is the binomials. This categorize the basis of the operations, plus operation and minus. This is two operations is a basis is a term of a number of terms, and trinomials. These are three terms. Example m square minus m minus 1. This is one terms, two terms and three terms. This is also one terms, two terms and three terms. This is the types of monomials. Next concept. नेक्स्ट कंसेप्ट द हाईएस्ट वैल्यू एक्सपोनेंट के बेसिस पे भी उसको कैटेगराइज किया गया है। दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज द सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल्स। सो because why is second degree polynomials? So variables is power is exponents is 2, so this is the second degree polynomials. A plus 11 is the first degree polynomials because exponents power is 1, and x to the power 4 minus 16 is the fourth degree polynomial because x to the power exponent variables highest power is 4. This is the fourth degree polynomial. Also a constant term such as 7, 22 minus 9 is
is the zero polynomial. This is the zero polynomial. Because zero polynomial, this is not available in the variables, available in variables, but x to the power 0. Because 7 equal to 7 x to the power 0. So x to the power n x to the power 0 equal to 1. So next term is sixth term. A polynomial of the degree 0 is called the constant polynomial. These polynomials have the degree is 0. This is called the constant polynomials. Next, concept number 7. If alpha and beta are the zeros of px is equal to x square plus bx plus c and a not equal to 0, then alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha beta is equal to minus c by a. Next, concept number 8. A quadratic polynomials whose zeros are alpha and beta is given by px और fx is equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. यदि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया रहेगा, उसका जीरोज अल्फा एंड बीटा यदि गिवन है, तब उस पोलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. Next, 9 number. A real numbers a is the zeros of polynomials. कोई रियल नंबर a है और zeros of polynomials कब कहलाएगा fx का, if f a इक्वल टू क्या हो जाए 0. यदि कोई फंक्शन पोलिनोमियल 0 हो जाएगा तो उस पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, zeros of the polynomials. Next, 10 number concept. A polynomials of degree n can have at most n real root. यदि कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री n है तो उसके पास एट मोस्ट n रियल रूट्स होगा ही होगा. नेक्स्ट है एंड लास्ट, एलेवन नंबर. ज्योमेट्रिकली द zeros of polynomial fx are the x coordinates of the points where the graph y is equal to fx intersect x axis. देखो ज्योमेट्रिकली हम लोग देखते हैं जब जीरो जो पोलिनोमियल निकालेंगे अब x कोऑर्डिनेट में, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट. ओके, x कोऑर्डिनेट में ऑफ द पॉइंट्स विद द ग्राफ y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx इंटरसेक्ट कहाँ से करेगा, y इज इक्वल टू fx है तो इंटरसेक्ट करेगा किस पर, x एक्सिस पे. ओके नेक्स्ट, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक, जो भी कंसेप्ट था. सो अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस देखिए क्या दिया हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ MCQ क्वेश्चंस एंड फ्लुएंसी आस्क इन MCQ क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट. First question is, if x equal to 8 plus minus root under minus 8 square minus 4 cross 3 cross 2 by 2 into 3, then the required polynomial is. जो भी मेरे पास गिवन है x का, उसका वैल्यूज निकाल कर हमको क्या निकालना है, पोलिनोमियल्स निकालना है. पोलिनोमियल्स क्या हो सकता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया गया है. देखो जब एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका जो कैसे आया है ना. देखो जो भी मेरे पास गिवन पोलिनोमियल था f इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 8 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 इंटू 3. देन ऑन कंपेयरिंग विथ x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, वी हैव b इक्वल टू माइनस 8 एंड a इक्वल टू माइनस 3. यहाँ से देखो b का वैल्यू निकाल देगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा माइनस 8 आ रहा है, इसे कंपेयर हम लोग कर देंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 8 एंड a का वैल्यू कितना आ जा रहा है 3 एंड c का वैल्यू कितना आ जा रहा है मेरे पास
2 आ जा रहा है ना। सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स, तो पोलिनोमियल्स का एक जानते ही हैं क्या होता है पोलिनोमियल्स का। क्या होता है पोलिनोमियल्स का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो एक ए बी सी मेरे पास आ गया है ना। तो अब निकालते हैं क्या होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम लोग पोलिनोमियल्स ए के जगह क्या है 2 3x स्क्वायर प्लस बी के जगह में क्या दिया हुआ है -8 इंटू एक्स प्लस सी के जगह कितना दिया हुआ है 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर -8x प्लस 2। सो दिस इज द ऑप्शन, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is find the coefficient of x raised to the power 0 in x square plus 2x plus 2 is। तो यहाँ पर देखना है कि कोफिशिएंट किसका x टू द पावर 0 का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू यहाँ से इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तब बोला गया था एक्स टू द पावर 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है नहीं है कुछ तो 1 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 है, एक्स का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैविंग द जीरोज। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक जीरोज दिया हुआ है -5 एंड -3। तो मेरे पास बोला कि नंबर ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना हो सकता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब 2 दिया गया है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना हो सकता है उसको देखने के लिए बोला गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन क्या है सो देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। लेट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स बी अल्फा एंड बीटा, then alpha is equal to -5 and beta is equal to -3. The general form of the polynomials with zeros alpha and beta is given by k of x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। अंत ही होता है where k is the any real numbers k into x square minus alpha plus beta कर देंगे, अल्फा का वैल्यू -5 और बीटा का वैल्यू -3 इंटू एक्स प्लस -5 इंटू -3। तो फाइनली k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 हो गया। Hence more than 3 polynomials can have two zeros -3 and -5। इसे कितना हो सकता है 3 पोलिनोमियल हम लोग कर सकते हैं इसको। तो मोर देन 3 है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को 4 को देखो क्या है। फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल बी द इक्वेशन पी स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 नॉट बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा कौन सा वैल्यू जो हम डालेंगे जो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसा फर्दर बनाते हैं सब। क्या लिखा हुआ इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 देन पी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 देन इम्प्लाई दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन इम्प्लाई दैट पी इज इक्वल टू +-1। तो पी इज इक्वल टू +-1 दैट मीन्स कितना वैल्यू हमको दे दिया पी इज इक्वल टू +1 भी आया और पी इज इक्वल टू -1 भी आया, पी इज इक्वल टू +1 भी आया, पी इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसका जीरोज निकालना बोला इस पोलिनोमियल का। जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग इस इक्वेशन जो रहेगा उसको हम लोग क्या पुट कर देते हैं जीरो निकाल देते हैं। दैट मीन्स हम लोग पुट कर देंगे जीरो जिसका इस पोलिनोमियल का क्वाड्रेटिक में आएगा सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। चलो देखते हैं गिवन क्या है। एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -x -6। अब मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग कर सकते हैं इसको ब्रेक। 6 आ गया 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x प्लस -6।
तो x यहाँ से कॉमन ले लिए दोनों से, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लिए तो x हो गया, यहाँ से हुआ x, यहाँ से बचेगा -3, यहाँ प्लस का साइन प्लस था, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x-3। अब देखिए यहाँ से दोनों से बहुत में कॉमन किया x+2 और x-3 है उसको कॉमन, तो यहाँ से क्या हो गया x और यहाँ से 2 हो गया, तो x+2 इंटू x-3 हो गया। अब वी हैव फाइंड द जीरो, जीरो ही निकालने के लिए पुट क्या कर देंगे, f(x)=0, दैट मीन्स x क्या हो जाएगा -2 और 3, x=-2 एंड 3 हो जाएगा। तो ये फाइंड करने बोला था हमको जीरो ही निकालने के लिए, तो -2 and 3 किस में है, किस में है -2 and 3, ऑप्शन नंबर बी में है -2 and 3। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का क्या वैल्यू है, इज -4 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x)² -x -2k +2 व्हाट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का क्या वैल्यू है, इज -4 इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) इज दिस। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्या दिया गया है एक्सप्लेनेशन। सो बोला गया है इसमें f(x) क्या दिया है, x² -x -2k +2 ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x -4 वी हैव f ऑफ -4 इक्वल टू, जब x के वैल्यू -4 पुट कर देंगे पूरा कम्प्लीटली दिस, जहाँ जाए x उसको पुट कर दो -4, तो x ऑफ -4 क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर -4 -2k +2, 16 + 4 -2k -2, तो 18 - 2k = 0, 10 18 - 2k = 0, 2k = 18, दैट मीन k = 9। तो फाइंड हमको वैल्यू निकालने बोला था ही, k का वैल्यू 9, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, अल्फा एंड बीटा क्या दिया हुआ है, जीरोज दिया गया है, किसका, अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है जीरोज, किसका, पोलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, सच दैट दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा = -6 एंड अल्फा बीटा = -4, देन क्या लिखा हुआ है, एंड व्हाट देन दिया हुआ है व्हाट राइट द पोलिनोमियल्स ऑफ इतना, देन राइट द पोलिनोमियल्स बोला गया है, तो पोलिनोमियल्स क्या हो सकता है ना, तो पोलिनोमियल्स निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, क्या करते हैं, जो भी दिया गया है वैल्यू उसको हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, आ जाएगा। देखो क्या गिवन क्या, अल्फा प्लस बीटा = दिया है -6, अल्फा बीटा = दिया है -4, तो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स विद जीरोज क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद जीरोज है, अल्फा एंड बीटा जो गिवन है मेरे पास, फंक्शन क्या होता है इस टाइप से, क्या हो जाएगा मेरे पास, जब ऐसा गिवन है तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, f(x) क्या दिया, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो द पोलिनोमियल्स ऑफ f(x) क्या हो जाएगा, x² + 6x - 4 = 0। तो हम लोग पुट कर देंगे, जो भी अल्फा प्लस बीटा जो गिवन था इसमें पुट कर देंगे, फॉर्म तुम्हारा ये फॉर्म होता है ना, क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्म होता है, क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो इस पोलिनोमियल पुट कर दिए तो आ गए कुछ पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है किसका, पोलिनोमियल का, है ना, एंड f(y) दिया हुआ है 3y² + 7y + 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा निकालने बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन दिया हुआ उसको हम लोग राइट करते हैं, गिवन के अंदर क्या दिया है, f(y) = 2y² + 7y + 5, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -7/2, एंड अल्फा बीटा क्या दिया है, 5/2, दोनों गिवन है मेरे पास, दोनों गिवन क्या है, नहीं गिवन नहीं था ये ना, हाँ नहीं था, तो अल्फा प्लस बीटा निकल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यही ना था, तो उसी से हम लोग निकाल ले वैल्यू। अब निकल गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा अब निकल गया, अल्फा बीटा निकल गया, पुट कर दिए, अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं -7/2, प्लस का साइन था प्लस दिए, अल्फा बीटा लिखे 5/2, इसको फर्दर सॉल्व कर दिए तो आ गया मेरे पास -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या है, ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू 0, देन ए बी इज इक्वल टू, इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक 1 है, रूट है किसका, इस इक्वेशन का, है ना, एंड देन ए बी इज इक्वल टू, तब ए बी क्या हो जाएगा इसका, चलो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। बोला गया है क्वेश्चन में गिवन क्या है, एफ वाई इक्वल दिया ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 10 F1 1 पुट कर देंगे, वाई की जगह 1 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो फर्दर सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ए का छोड़ हल किया -3/2 एंड एफ वाई इक्वल टू आ गया आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अब दूसरा इक्वेशन था उसमें पुट कर दें तो बी का वैल्यू आ गया -1। अब ए बी बोला गया तो -3/2 क्रॉस 3 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा -1, तो -1 to -3 क्या हो जाएगा 3 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी ऑफ पी प्लस 1 इक्वल टू 0, देन p इज कांस्टेंट आर, वेयर p क्या दिया हुआ है कांस्टेंट आर, p दिया हुआ है कांस्टेंट, चलो इसको भी रूट निकालते हैं, कैसे निकलेगा, देखिए कैसे किया हुआ है, सो इसको करना है कैसे वर्क, सो देखिए क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इक्वल टू 0, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, दस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पी इंटू पी प्लस 1, देन इम्प्लाई दैट अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस बीटा एंड माइनस ऑफ 1 प्लस बीटा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पी प्लस 1 इंटू पी, हैंस बीटा इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ पी प्लस 1, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो निकालने बोला है, कौन सा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो फाइंड करते हैं इसको, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोला गया है, देखो क्या गिवन जो है उसको लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू, इसको फर्दर सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 3 माइनस एम इंटू एक्स माइनस ऑफ एम इंटू एम प्लस 3, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम प्लस 3x प्लस एम एक्स माइनस एम ऑफ एम प्लस 3 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस एम प्लस 3 प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस एम इक्वल टू into x minus m plus 3, hence therefore its जीरो आर क्या हो जाएगा माइनस m और एक m plus 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ one of the zeros of the quadratic polynomial is x square plus 3x plus k equal to is 2, 1 0 दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2, फाइंड देन द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू क्या हो सकता है, इसे फाइंड करना है, चलिए करते हैं कैसे हो सकता है। देखो इसमें क्या दिया गया है, फाइंड हमको क्या करना है के का वैल्यू, देखिए लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के गिवन है, यदि हम x इक्वल टू इधर 0 पी एक्स इक्वल टू पुट कर दैट मीन्स p इक्वल टू 2 p2 इक्वल 0 दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, देन प्रेजेंट के का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से 10 -10 आ गया, के का वैल्यू क्या आ गया -10। नेक्स्ट question number 13, the quadratic polynomials the sum of the whose zero is -5 sum दिया हुआ and product that means alpha plus beta इसका लो दिया हुआ है -5 and alpha and beta इसका लो दिया हुआ है आपका 6, ये दिया हुआ है ना। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका कैसे करना है सब जानते हैं, क्या क्या होता है, हम फार्मूला इसे जानते हैं, लेट द पोलिनोमियल बी पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, सम ऑफ 0 दिया है -5, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है 6, तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या आ जाएगा पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या हो जाएगा 6,
नेक्स्ट। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा अच्छा से। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके।